کہ آج سے پہلے اس طرح عبادت ایسٹر کی یا پھر کرسمس کی یہاں پہ نہیں ہوئی ہوگی، ہے نا؟ ایسے ہی ٹھیک کہہ رہا ہوں میں یہ سوچ رہا تھا دنیا میں بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، بادشاہ آئے ہیں، ترکھم خاں آئے ہیں، نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، لیکن جب قبر کی بات آتی ہے تو سب اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں، قبر کے اندر سما جاتے ہیں، من مٹی ان کے اوپر آ جاتی ہے، کوئی بھی اس کے اندر سے باہر نہیں آتا، لیکن ایک واحد ذات ہمارے درمیان موجود ہے، وہ یسوع جو قبر کو پھاڑ کر اس میں سے باہر نکل آیا ہے اور تیسرے دن بھی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا! یسوع وہ ذات ہے جس کو قبر بھی نہ دبا سکی۔ ہاللیلویا! قبر پر دیکھیں میری بات کیا لکھا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے جب آپ قبر پر جاؤ تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہ شخص اس دن پیدا ہوا، اور نیچے ہی لکھا ہوتا ہے یہ اس دن کیا ہو گیا، مر گیا۔ ایسے ہی لکھا ہوتا ہے نا، یعنی اب دنیا کی جتنی بھی قبریں ہیں ان پر جا کر جب آپ پڑھتے ہو نا تو آپ کو یہی لکھا ہوا ملے گا کہ یہ شخص اس دن پیدا ہوا اور اس دن مر گیا، لیکن جب آپ یسوع کی قبر پر جاتے ہو اور اس کی قبر کے اندر داخل ہوتے ہو تو قبر اندر سے یہ چلا رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا! قبر اندر سے چلا رہی ہے کہ بھی وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا! یہ ذات صرف ایک ہی شخصیت کو حاصل ہے، اور وہ کون سی شخصیت ہے؟ پلیز اونچی آواز کے ساتھ اس کا نام لے۔ کون سی شخصیت ہے وہ؟ آئے میرے ساتھ نکالیں حوالہ۔ دیکھیں ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے، میں کوشش کروں گا کہ ہم اس بیت کو جان لیں، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو۔ اس میں لکھا ہے 6 آیت میں، 28واں باب اس کی 6 آیت میں، وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ سب بولیں آمین آمین آمین۔ دیکھیں اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان سب کا اس زمین پر آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ابراہیم آیا تو خدا نے اس کو مقصد دیا کہ وہ کیا کرے، وہ اس کے لیے، خدا کے لیے ایک مقدس قوم کو، ایک نسل کو پیدا کرے۔ اگر نو آیا ہے تو اس کے لیے یہ تھا کہ وہ ایک کشتی بنائے تاکہ طوفان سے سب لوگ بچیں۔ اگر موسیٰ آیا ہے تو خدا نے اس کو یہ مقصد دیا کہ وہ اپنی زندگی میں یہ کام کرے کہ بھی وہ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر لائے، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں، نبی آئے ہیں، دنیا میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، سب کا کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یسوع کا بھی مقصد ہمیں ملتا ہے۔ کلام مقدس میں یسوع مسیح فرماتے ہیں میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں، اور کون سی زندگی پائیں؟ کون سی زندگی پائیں؟ یعنی یسوع کیا دینے آیا تھا ہمیں؟ یسوع ہمیں زندگی دینے آیا تھا۔ یسوع کا مقصد کیا تھا؟ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آنے کا مقصد کیا تھا؟ زندگی دینا۔ اور کون سی زندگی دینا؟ جو جی رہے؟ نو، مرنے کے بعد ایک زندگی ہوتی ہے جس میں 2 وے ہمیں ملتے ہیں، ایک کسی انہوں دوزخ کرنے تھے، ایک کی کرنے ہیں جنت کرنے ہیں۔ تو یسوع سانو کی دینا ہے؟ یسوع نے کیا کہا صلیب پر؟ تو آج ہی میرے ساتھ۔ یعنی میں سوچ رہا تھا کہ بھی کیسی ذات ہے، لوگ اس کو مار رہے ہیں، اس کو کچل رہے ہیں، اس کے اوپر کوڑے لگا رہے ہیں، لیکن وہ صلیب پر بھی جب مر رہا ہے، جان دے رہا ہے، تو اس کی کوئی اور فکر نہیں ہے، بلکہ اس کی وہی فکر ہے جو جس کام کے لیے وہ زمین پر آیا ہے۔ اور یسوع کی فکر کیا تھی؟ لوگوں کو زندگی دینا، ہمیشہ کی زندگی دینا۔ دیکھیں لوگ مار رہے ہیں، اس کو کوڑے بھی مار رہے ہیں، بھالے بھی مار رہے ہیں، لیکن وہ صلیب پر مرتا ہوا بھی زندگی دے رہا ہے۔ ہاللیلویا! کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو۔ ہمارے اوپر میں یہ یسوع ہے اور کوئی نہیں ہمیں۔ دیکھیں دنیا کا جو بادشاہ آتے ہیں نا، یسوع کے سر پر کیا تھا؟ تاج تھا اور تختہ لکھا ہوا تھا، وہاں پہ لکھا ہوگا یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، یہی لکھا ہوا تھا نا۔ دیکھیں یسوع کیا کہا ہے؟ کیسا بادشاہ ہے؟
दुनिया के बादशाह जब फतह करने के लिए निकलते हैं ना, तो तलवार हाथ में लेते हैं, गन लेते हैं, वो औजार लेते हैं, फिर मारते हुए, खून बहाते हुए, जाने लेते हुए जाकर मार कर फिर क्या करते हैं, फतह करते हैं। लेकिन यस्सु हमारे दरमियान ऐसी जात है जो मार कर नहीं बल्कि मर के फतह करती है। हालेलुया। यस्सु जब बनी इसराइल गुजर रहे थे ना वादा की सरजमीन पर, तो खुदा उनसे कह रहा था कि तूने उन जैसे काम नहीं करने। वहां पे एक मलूक देवता नजर आता है बाइबल मुकद्दस में, जिसका हमें बार बार जिक्र आता है। क्रूज की किताब में आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। और ये देवता कुछ इस तरह का बना होता था, मेरे तरफ देखें यार, इस तरह का, इसके हाथ इस तरह के होते और ये पूरा पीतल का बना होता, और इसके हाथों के ऊपर बच्चे को रखा जाता, 2 साल के बच्चे को वहां पर रखा जाता, क्योंकि इस देवता का काम पता क्या था, ये कुर्बानियां मांगता था, बच्चों की कुर्बानियां मांगता था। और बच्चों की कुर्बानियां जब मांगी जाती थी, इसके पेट के अंदर खला होता, और उस खला में लकड़ियां रखी जाती, जलाई जाती, और जलाकर ये साथ में ढोल बजाए जाते, ताकि इसके बच्चे का जो बिलपना है इसकी माँ के कानों तक ना पहुंचे। सुन रहे हैं ना मेरी बात भी, ये किस तरह के देवता थे। और बच्चा जो है ऊपर बिलप बिलप कर, क्योंकि वो पीतल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, हीट पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ना तो वो बच्चे बिलपते हैं, ढोल बजाए जाते हैं। देखिए, मैं सोच रहा था कि दुनिया के कैसे खुदा हैं, ये जाने मांगते हैं, यहाँ तक के खून मांगते हैं, बकरे मांगते हैं, बछड़े मांगते हैं, सोना मांगते हैं, क्योंकि दुनिया के जितने भी खुदा हमें मिलते हैं वो सारे के सारे मांगने वाले खुदा हैं। लेकिन यस्सु ऐसा है जो मांगने वाला नहीं, देने वाला है। वो अपनी जान तक देता है, अपना खून तक देता है, और अपना खून सलीब पर बहाकर हमें गुनाहों से आजाद कर देता है। हालेलुया। ये यस्सु है। देखिए, दुनिया के खुदा मांगने वाले, हमारा खुदा देने वाला है। हालेलुया। दुनिया में जितने भी लोग मरते हैं, दुनिया में जितने भी लोग मरते हैं, उनके मरने पर क्या होता है, मातम होता है। अब जब कोई बच्चा पैदा होता है, क्या उसका जन्मदिन नहीं मनाया जाता? बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है। यस्सु का हम जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं मनाते? क्रिसमस किसे कहते हैं? यस्सु के जन्मदिन को कहते हैं। हम यस्सु का जन्मदिन भी मनाते हैं। लेकिन जब कोई शख्स मरता है तो क्या फिर उसका जन्मदिन मनाया जाता है? मरने के बाद उस शख्स का जन्मदिन हम मनाते हैं? मरने के बाद हम किसी का जन्मदिन नहीं मनाते, बल्कि उसके मरने वाले दिन को याद रखते हैं, जिसको हम बरसी भी कहते हैं। और वो साल ब साल क्या की जाती है, मनाई जाती है। वो साल ब साल उसका मातम जो है याद रखा जाता है। लोग तो 20-20 साल तक भी याद रखते हैं। ये बड़ी बड़ी अरसे तक जिनकी नस्लों का काम हो, फिर वो अपने वडेरियां को याद रख देंगे ने, नस्लों तक याद रख दे कि वो साडा फलाना इस दिन की होया सी, मरिया सी, उसकी बरसी ਨੂੰ याद रखा जाता है। लेकिन मैं सोच ही रहा सी कि भी यस्सु कैसी जात है साडे विच, इहदे पैदा होण दा दिन ते ਅਸੀਂ मनाने हैं और खुशी ना मनाने हैं। उस दिन पूरी दुनिया रोशन हो रही होंदी है। लेकिन जो यस्सु पे मरिया है, दुनिया दी अज भी गम में, दुनिया दी अज भी गम में। साडे लिए किन्ने दिन नहीं गम रहा सी, सिर्फ 3 दिन। तीसरे दिन वो जी उठता है कुदरत के नाल, और एक कहता मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, और अब तो आबाद क्या रहूंगा, क्या रहूंगा। देखो कैसी जात है। आज देखो ना, पूरी दुनिया ते यीशु मसीह दे असी मरन दा दिन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुशी ना कर रहे हैं। हालेलुया। कलाम की बातों से बरकत पा रहे हैं। आगे फिर कंटिन्यू रखें, नहीं थोड़े से हाथ हिला दें मुझे ताकि पता चले। 5 मिनट में 5 मिनट हो रहा है, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। अच्छा, कब्र क्यों खाली है यीशु मसीह? पहला ग्रंथियों उसका 15वां बाब 26वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह की कब्र जो है इसलिए खाली हमें नजर आती है, वो इसलिए मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि यीशु मसीह जो है उसने अपने पिछले दुश्मन को, जो उसका पिछला दुश्मन था मौत। आप ग्रंथियों उसके 15वें बाब की 26वीं आयत में जब पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पता क्या लिखा हुआ मिलता है? वहां पर लिखता है यीशु मसीह ने मौत जो उसका पिछला दुश्मन थी उसको उसने मार दिया, नेस्त कर दिया, कुचल दिया। बात को समझे इस बात, ये मौत को कैसे यीशु मसीह ने मारा। देखें, आदम ने जब गुनाह किया, आदम ने क्या किया?
जब गुनाह किया, आदम के गुनाह करने के बाद इंसान क्या हुए, मरने शुरू हुए। लोग मरते गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे एक एक करके सब के सब क्या होने लगे, मौत के अंडर आने लगे। सबसे पहले दुनिया में अगर किसी ने मुर्दा जिंदा किया ना, तो वो बाइबल मुकद्दस में हमें एलिया मिलता है, जिसने मुर्दा जिंदा किया है। मौत पता खुशी से मार रही थी लोगों को मार रही थी, और हर जब कोई मरता था खुशी करती थी इस पर भी, मैं इसको भी ले गई हूँ, मैं इसको भी अपने अंदर ले गई हूँ। जब एलिया के दौर में एक बच्चा मरता है, तो जब उसको जाकर एलिया जिंदा करता है, तब मौत थोड़ा सा ऐसे हिली होगी, भी ये कैसे हो गया, मेरे चुंगल से तो अब तक कुछ छुटा नहीं है, लेकिन ये कौन है जिसने छुड़ा लिया। अब देखिए, एलिया छुड़ाने वाला था। एलिया क्या था, उसको मौत के मुंह से निकालने वाला था। फिर आगे हमें कलाम में मिलता है कि भी एलिया को जो उस वक्त की हुकूमत होती थी, उसकी जो मलिका थी एलिजबेथ, वो कहती है कि एलिया मैं तुझे कल इसी वक्त क्या कर दूंगी, मार दूंगी। वो मौत के खौफ, जो मौत से छुड़ा रहा है, वो मौत के खौफ से भागना शुरू कर देता है, और 40 दिन तक लगातार सफर करता है, और सफर करता हुआ वो इतनी दूर चला जाता है सारपत के नाले पर। 40 दिन तक ना उसे भूख की प्यास की परेशानी होती है, बस उन्होंने एक ही डर पिया होंदा है कि किते मैनू एलिजबेथ फाड़ ना ले, और फाड़ के की करे मैनू किते मार ना देवे। मैनू किदा खौफ सी, किहड़ी चीज दा खौफ सी, किस चीज दा, तुहाडे मूंह सुनना चाहना, किस चीज दा खौफ सी? उसको मौत का खौफ था कि भी मौत को जे देखो, उन्होंने खुदा ने इतनी कुदरत दी है कि भी वो मौत के मुंह चों लोकां नूं छुड़ा सकदा सी, लेकिन खुद भज रहा सी। खुद पता क्यों भज रहा सी? उन्होंने पता सी कि भी मैं छुड़ा ते सकदा, लेकिन अगर मैं भी मौत के मुंह च गया तो मैनू भी मौत छड्डेगी नहीं, मैं जी नहीं सकांगा, फिर मैं मौत के अंडर आ जाऊंगा। लेकिन खुदा ने ਉਹਦਾ खौफ ते दूर किया, नाल ਉਹਨੂੰ एक होर कुदरत ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ कि ਉਹਨੂੰ जिंदा ही आसमान ਤੇ उठा लिया, ਉਹਨੂੰ जिंदा ही आसमान ਤੇ उठा लिया। नहीं अगले गल रही जी, गल सुनो जरा, टाइम च गया। गल ये है कि भी ये मौत तो डर रहा सी, भज रहा सी, और मौत के मुंह च जाना नहीं सी चाह रहा, इस वजह तो क्योंकि भी मौत ने इन्हू एक बारी लै लिया, फिर उस तो बाद मौत के मुंह चो छुट नहीं सी सकता। लेकिन कलाम बयान करता है कि यीशु मसीह खुद मौत की तरफ जा रहा है, क्योंकि यीशु जानता सी, एलिया नूं ये पता सी मैं मौत तो छड़ नहीं सकता, छुट नहीं सकता, लेकिन यीशु खुद मौत के मुंह में जा रहा था, क्योंकि यीशु को पता था कि तीसरे दिन मैंने मौत का सर कुचल कर जिंदा हो जाना है। हालेलुया। किन्ने मौत नूं मारिया, किन्ने मारिया मौत? देखो, मुर्दे जिंदा करने वाले भी मौत तो डरते हैं, लेकिन यीशु मसीह वाहद ऐसी जात है जिहड़ा मौत नूं कुचलता है और तीसरे दिन जिंदा हो जाता है। हालेलुया। देखो, मैंने आपसे कहा था बहुत कुछ है खाली कब्र पर हम सुना सकते हैं आपको, लेकिन अभी थोड़ा सा इसी को कंटिन्यू रखते हैं। मत्ती की इंजील में ये हवाला मैं आपसे ना कहूँगा कि प्लीज़ ये पढ़ें। ये बहुत सारे लोगों ने ना 27वां बाब उसकी 51 आयत 50वें आयत से मैं पढ़ूंगा, सुने आप प्लीज़। आप मेरी तरफ सुने, ये हवाला बहुत ही कमाल का मुझे लगता है, और मैं जब भी पढ़ता हूँ और मेरे दिल में एक शादमानी सी और एक खुशी सी आ जाती है, कैसी ज़ात है हमारे दरमियान जो ज़मीन पर उतर आई है। कलाम में 50वीं आयत में लिखा है, 27वीं बाब की 50वीं आयत, कलाम में लिखा है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर जान दे दी। यीशु ने फिर बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर जान दे दी, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया, और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं। हालेलुया। सुने, यीशु जान देता है तो कब्रों के मुंह क्या है, खुल जाते हैं। आगे सुन, आगे क्या लिखा है, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। हालेलुया। मैं कहता हूँ दुनिया में जितनी मर्जी बड़ी शख्सियत ले आए, नबी ले आए, पैगंबर ले आए, जितने मर्जी लोगों को ले आए, मरेंगे तो साथ लोग मातम करना शुरू कर देंगे, लेकिन कभी भी ऐसी अजीब कुदरत उनके दरमियान जाहिर नहीं होगी कि भी कोई मरे और मुर्दे जिंदा होने शुरू हो जाएं। सिर्फ एक ही जात है और वो यीशु है। अरे जान देता है तो कब्रों के मुंह खुलने शुरू हो जाते हैं और मुर्दे उठना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। कैसी जात है हमारे घर में, जान देता है। मैं कहना
ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਹੇਗਾ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੈਸੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਯਿਸੂ। ਆਓ ਯਿਸੂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਮ। मैंने प्रोमिस किया था 10 मिनट आपके एक्स्ट्रा लिए हैं, तो आई होप आप लोगों ने बरकत पाई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये फर्क यीशु की ज़ात में जो हमें मिलता है, पूरी कायनात में किसी और की ज़ात में नहीं मिलता। ना यीशु जैसा कोई पैदा हुआ है, ना यीशु जैसा कोई मरा है। हालेलुया, एक ही ज़ात है। और वो कौन सी है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, और वो कौन सी ज़ात है? कौन सी ज़ात है?